Hello, children. How are you today? I hope you must be fine and you must be studying on time. Now, today we are going to start a new chapter, which is the Northern Mountains. In this chapter, we will learn about the mountains which are in north. Here, firstly, you can see that few words are there mentioned in the starting of the chapter, which is it's written as circle the words that are related to the word mountain. Now you can see that there are few words: height, slope, beach, valley, range, comet, peak, oasis, and snow. So you have to circle the words that are related to the word mountain. So height is related to mountain, slope, range, valley, snow, peak. And these are not related to mountains. Beach, oasis, they are related to sea. And comet is related to galaxy. Now if you come towards the first line, it's written the northern mountains include the Himalaya and the Karakoram mountain ranges, the Purvanchal hill ranges. So three types of mountains, three types of hill ranges are covered in this, which is northern mountain include the Himalaya, Karakoram mountain and the Purvanchal hill ranges. Just remember them. Now they will define the Himalayas, about Himalayas. The Himalayas stretch from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. You can also see map 2.1, which is mentioned in the next page. Most peak remains snow covered throughout the year, and in the Mount Everest, in the Himalayas, the highest peak in the world. The Mount Everest is known as Himalayas, which is the highest peak in the world. It lies on the border between Nepal and China. हिमालय कहाँ पर लाई करता है? नेपाल और चाइना के बॉर्डर के बीच में. The Himalayas consist of three parallel range. हिमालय three parallel range रखता है. उसका है first is the Greater Himalaya, second is the Middle Himalaya, and the last one is the Outer Himalaya. You can learn it by कि हिमालयस की पैरेलल रेंज कितनी होती हैं. फर्स्ट इज ग्रेटर का जी यूज़ कर लो, द मिडल का एम ले लो एंड द आउटर हिमालय का ओ ले लो. तो जब भी पूछेंगे कि हिमालयास की कितनी रेंज होती है, ये तो पता है 3 रेंज होती है, पर 3 में कौन सी होती है, तो हम इसका फर्स्ट लेटर ले लेंगे GMO. तो हम बोलेंगे GMO. जैसे ही हम GMO बोलेंगे तो हमें याद आ जाएगा द ग्रेटर हिमालय, द मिडिल हिमालय, द आउटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय हिमाद्री बोला जाता है, मिडिल हिमालय को हिमाचल भी बोला जाता है और आउटर हिमालय को शिवालिक बोला जाता है. तो HHS एंड GMO इज इक्वल टू HHS. ओके, ये एक तरीका है याद करने का. हम ये वाले मैप पर आ गए जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि आप माउंट एवरेस्ट देख सकते हैं. ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है. ये काराकोरम रेंज है, ये काराकोरम हिल्स है, ये पूरा हिमालय है. आप देखिए ये पूरा हिमालय है ना, नॉर्थ. ये जो बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना. ओके, आपको लोकेशन मैंने दिखा दी है. अब हम ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ते हैं. द ग्रेटर हिमालय इज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, जो कि आप देख सकते हैं. It is the highest of the three ranges. It remains covered with snow throughout the year. Glaciers are found in these mountains. मतलब जो पत्थर नहीं, जो आइस होता है वो पत्थर के रूप में उसके ऊपर हो जाते हैं और उसके माउंटेन्स बन जाते हैं. मतलब आइस के माउंटेन्स बन जाते हैं, उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं. Many rivers such as Indus, Ganga, Yamuna and Brahmaputra, they originate from these glaciers. जब ये ग्लेशियर समर्स में पिघलते हैं, दे मेल्ट अवे, तो कौन कौन सी हमें नदियाँ मिलती हैं? इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. ये यहीं से बनती हैं. कंचनजंगा इज़ अ वेरी हाई पीक इन दिस रेंज. कंचनजंगा
जो माउंटेन है वो सबसे हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा हाईएस्ट पीक इन द रेंज ऑफ हिमालय है, तो आप आंसर करोगे कंचनजंगा। ठीक है, देखिए ये ग्लेशियर्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब पानी बहता है और वो जम जाता है तो उसको ग्लेशियर कहा जाता है। अ ग्लेशियर इज अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस एंड स्नो। ये जो रिवर मूव करती है ना वही जम जाती है, तो वो फॉर्म होती है कैसे, आइस और स्नो से, उसे क्या कहते हैं, ग्लेशियर। और वही समर सीजन में मेल्ट हो जाती है और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, दे ट्रांसफॉर्म इनटू फ्यू रिवर्स विच आर इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। नाउ विल कम टू द मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज को क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं हिमाचल। ये देखिए द ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, मिडिल हिमालय को हिमाचल बोलते हैं, द आउटर हिमालय को शिवालिक बोलते हैं। तो पहले हम मिडिल हिमालय पढ़ लेते हैं। द मिडिल हिमालय लाई टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। तो जो ग्रेटर हिमालय है इसका जो साउथ इधर जा रहा है, यहाँ पर मिडिल हिमालय पड़ता है ना, जो साउथ पोर्शन है। इट इज़ लोअर इन हाइट देन द ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय से थोड़ा छोटा होता है। द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन। कौन सा, अभी ये क्वेश्चन आएगा कि जो थिक फॉरेस्ट होता है माउंटेन स्लोप्स पर, वो किस मेनली वहाँ कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कौन से ट्रीज मिलते हैं, पाइन ट्रीज। तो फटाफट आप आंसर करोगे कि पाइन ट्रीज ही माउंटेन स्लोप्स पे पाए जाते हैं। पाइन, फर एंड देवदार, ये बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइन, फर एंड देवदार, ये 3 पेड़ मेनली पाए जाते हैं। हिल स्टेशन सच एज शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड देयर। हिल स्टेशंस पे हम लोग घूमने जाते हैं छुट्टियों में, तो कौन कौन से मिलते हैं, शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। नाउ वी विल कम टू द आउटर हिमालय, जिसको क्या बोलते हैं, शिवालिक। शिवालिक बोलते हैं इसको। दूसरा नाम क्या है आउटर हिमालय का, शिवालिक है। तो हिमालय की कितनी रेंज होती हैं चिल्ड्रन, अभी रिकैप करिए फटाफट। 3 रेंज होती हैं, मैंने आपको बताया इसका शॉर्टकट GMO। शॉर्टकट GMO क्या होता है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड द आउटर हिमालय। इसको शिवालिक बोलते हैं। द आउटर हिमालय इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ मिडिल हिमालयाज। जो मिडिल हिमालय पड़ा है ना, उसके मिडिल हिमालय के साउथ में आउटर हिमालय मिलता है। इट इज़ द लोएस्ट इन हाइट, ये सबसे छोटा होता है। मिडिल हिमालय किससे छोटा होता है, ग्रेटर हिमालय से, है ना। और आउटर हिमालय सबसे छोटा होता है। इन तीनों में सबसे छोटा हाइट का आउटर हिमालय होता है। दिस रेंज इन कवर्ड विथ फॉरेस्ट, मेनी वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। यहाँ पे कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे काराकोरम माउंटेन्स के बारे में। What are Karakoram Mountains? To the northwest of Himalayas, if we see this map, to the northwest of Himalaya, हमें क्या मिलेगा, काराकोरम। नॉर्थ वेस्ट देख रहे हैं आप, काराकोरम माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयस बियॉन्ड रिवर इंडस। यहीं पर रिवर इंडस अभी यहाँ पे दिखाया नहीं है। ये देखिए ये 3 रिवर दिखा रहे हैं, ये झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, और यही ढूंढिए कहाँ पर है, रिवर इंडस भी दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, काराकोरम के नीचे इंडस। हाँ, तो रिवर इंडस लाइज द काराकोरम रेंज। माउंट गॉडविन ऑस्टिन लाइज इन दिस रेंज। माउंट गॉडविन हम ढूंढेंगे, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ये भी एक माउंटेन है। It is also known as K2 mountains which lie in this range. It is the highest peak in India. This is the, अगर पूछेंगे which is the highest peak in India, so this is the highest peak in India. Okay. And it is also known as second highest peak in the world. Second highest peak Mount Godwin Austen है, और इंडिया में the highest peak in India है, पर वर्ल्ड में second highest peak in the world है।